Welcome back, my dear student. Today in this class, we will study the new concept of physics that is known as the capacitance, as well as capacitor and how the spherical capacitor or parallel plate capacitor work, how much energy is stored in that, and what will happen when we will add them in series or parallel. चलो भाई कैपेसिटेंस की बात करते हैं. We will use the mixed language so you can understand this concept well. What is called capacitance? Capacitance is the ability to store the charge. What is the meaning of ability to store the charge? We are seeing in our home fan having capacitor or condenser, in other word we say cooler having condenser. Why we are using the condenser? हम यूज क्यों करते हैं? क्या जरूरत है इसकी? करंट की सप्लाई तो लगातार हमारे पास आती है पावर स्टेशन से. Why we are using capacitor? Because when you need to start anything, you need bit energy. And what capacitor do? When electricity is there, they store the charges, and when it is required, they give to the appliances. जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत दे देते हैं, चार्ज कर देते, उसके बाद जो कांस्टेंट करंट आ रही है उससे अप्लायंसेस चलता है. तो कैपेसिटर का काम क्या है? किसी चीज को तुरंत के लिए स्टार्ट कर देना, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. तो व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, यही हमें पढ़ना है यहाँ पे. तो कैपेसिटेंस is the ability to store the charge, and how we will define, suppose any conductor is there, if we are giving q charge to it, what is the पहले कंडक्टर है क्या? ये कंडक्टर एक तरह का है. तो कैपेसिटेंस क्या हुआ? इट एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज. डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज दिए हैं, भाई चार्ज दोगे तो उसके क्या होगा? उसके पोटेंशियल में इंक्रीज होगा, चेंज होगा, देन देयर वुड बी चेंज इन पोटेंशियल. सो क्या कहा जाता है? व्हेनेवर वी गिव द चार्ज क्यू, देन देयर वुड बी चेंज इन पोटेंशियल अकॉर्डिंगली, या पोटेंशियल विल इंक्रीज. सो क्यू proportional to V. हम लोग सभी जानते हैं when we will remove the proportional, what we will have to bring? We will have to bring constant Q is equal to CV or C is equal to Q upon V. This C is called the capacitance. Okay, this C is called the capacitance. Okay, और capacitance कब अधिक होगा? When we can decrease the potential. Understood? When potential would be less, then we will see the more capacitance. You easily know that Q is in coulomb and potential in volt. So generally we say coulomb per volt, but not there. Coulomb per volt aggregately told as a farad. So capacitance का यूनिट क्या हुआ? farad हुआ. This is the unit of a capacitance that is known as a farad. बट आप देखोगे घर में कि कैपेसिटर में म्यूएफ लिखा होता है, माइक्रोफैरड. तो ये बहुत छोटे अमाउंट की वैल्यू होती है, बहुत बड़े अमाउंट की नहीं होती. 200 400 ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज जस्ट लाइक दैट. 10 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड. एंड यू नो 1 फैरड इक्वल 10 to power minus 12. 1 माइक्रोफैरड इक्वल 10 to power minus, माइक्रो मीन्स 6, पिको मीन्स अगर ये लिखा है 1 pf पिको फैरड, इट विल बी इक्वल टू 10 to power minus 12 फैरड. क्लियर? सो फ्यू थिंग्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर. Capacitance is the ability to store the charge, and it is defined as the charge given to any conductor to the change in potential. Unit is farad. And how we can define 1 farad? When 1 coulomb charge is given to any conductor, causes 1 volt potential difference, then its capacitance would be 1 farad. And 1 microfarad 10 to power minus 6, and 1 picofarad 10 to power minus 12 farad. Okay, this much understood. Now we will study how to calculate the capacitance of a आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. अगर आइसोलेटेड कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है
इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया चारों तरफ से, यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू स्फीयर। ये हॉलो है या सॉलिड है फर्क नहीं पड़ता। अगर अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या सपोज करते हैं, ऐसा लगता है कि सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, ऑल द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट सेंटर, सपोज दैट द रेडियस इज आर। You have studied already the formula of potential. What is the formula of potential? V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. At any point at the surface of this sphere, how much potential would be there? It is same as if entire charge is concentrated on center, distance is R. So formula is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. अभी हमने पढ़ा है बेटा, जस्ट पढ़ा है C इक्वल टू क्या होता है। हर जगह जब भी कैपेसिटर निकालना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल टू Q बाई V। चलो देखते हैं V की वैल्यू रखो भाई, कितनी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। Q से Q कट गया बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, isolated means hanging in air, like that you can understand this. Okay, suppose similarly we can consider earth just like a isolated sphere. it in the entire universe it is hanging, पूरे यूनिवर्स पे हैंग कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अब बताओ मुझे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 10 टू पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यों, बिकॉज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 9 10 टू पावर 9। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। Then we will solve it. When we will solve it, after solving that, 9 7 ja 63, around 7 point something value will come, 711 microfarad. Only this much small value it is having. Okay, so the capacitance of earth around this it will come 711 microfarad. It could be asked in examination, what is the कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो आपको कुछ दिया नहीं रहेगा, बिकॉज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको मालूम है और आर तो मालूम है। आज से नहीं पढ़ रहे, ग्रेविटेशन से आर की वैल्यू पढ़ रहे, रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए कुछ और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात, कैपेसिटेंस की तो बात हो गई, रेजिस्टेंस की तो बात हो चुकी थी, जैसे रजिस्टर की बात होती है उसी तरह कैपेसिटेंस की बात हो चुकी थी कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज है ये। अब वैल्यू होती है C इक्वल टू Q बाई V होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। उसके पहले ये जान लीजिए कैपेसिटर क्या होता है। भाई एबिलिटी टू स्टोर द डिवाइस तो किसकी, किसी ने किसी की, तो जिसकी उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store huge amount of इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके रूप में स्टोर होगी बेटा, चार्जेस के रूप में। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन accumulate or store huge amount of charges without increasing its volume। समझ बात आई। कैपेसिटर क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हेन इट इज डिवाइस to store huge amount of charges without increasing its volume। बहुत अधिक चार्ज का एक्यूमुलेट कर सकता है ये विदाउट इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किए। वॉल्यूम वही रहेगा लेकिन चार्ज को एक्यूमुलेट करने की पोटेंशियल इसकी बढ़ जाती है। और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम पूछते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेट। अब बात समझना मेरी बात, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेस। इक्वल अपोजिट मीन्स चार्जेस की बात हो रहा है, इस पे प्लस क्यू चार्जेस है तो आपको मालूम है इंडक्शन की थियरी से इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। when two equal and opposite charge plate are kept at a small distance, yes small distance, इतनी बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं, घर इतना बड़ा कैपेसिटर थोड़ी होगा, कंडेंसर छोटा सा होता है। so when two equal and opposite plate charges
kept at a small distance and filled with dielectric medium. It can be air or any other medium. So इसे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे. अब ध्यान समझिएगा बहुत आराम से. ये मानिए ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है. इसको प्लस क्यू चार्ज हमने दिया है. आई हैव गिवन टू माइंड दैट बाय द इंडक्शन इट विल कम हियर माइनस क्यू चार्ज बिकॉज इट इज इंटायरली प्लस प्लस positive plate charge. Because of induction here what will come? Minus will come. If this side I will add with her तो इंडक्शन का इधर पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? आर न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. चलिए प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे था. क्लियर? इस तो बात समझने के लिए बताइए कि अब जान लिया, आप समझ लीजिए इसको. अब बताइए, मुझे ध्यान से बताइएगा सभी लोग. P1 प्लेट है, P2 प्लेट है. P1 के कारण इंटेंसिटी किधर होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, माने किस साइड होगी? इस साइड होगी. तो ये हो जाएगा E1 वैल्यू. माइनस चार्ज के कारण किधर होते? टुवर्ड्स द चार्ज. E2 के कारण भी इधर हो गया. एक बात तो समझ में आ गई, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों करंट इंटेंसिटी वन डायरेक्शन में आई है, तो फाइनल इंटेंसिटी किधर रहेगी? हमेशा वन साइड ई रहेगी, प्लस पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव. और दे बोथ प्लेट सेपरेटली विल वर्क एज अ इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट. आप पढ़े होंगे गॉस थ्योरम में. तो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट का आपको याद होगा what is called sigma, plus sigma and minus sigma. Remembered or not remembered? That is surface charge density. अब बताइए E1 के कारण वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण. इसके कारण भी क्या आएगी? E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो फाइनली मैंने क्या बोला? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एक्स. हाफ हाफ मिलके फुल हो जाएगी. अगर हम ये सपोज कर ले बेटा इनके प्लेट के बीच के डिस्टेंस D है और इसका दोनों के प्लेट का एरिया A है, तो पोटेंशियल और इसमें क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है कि E इक्वल टू V बाई डी. सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी. और E की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. और आपको मालूम है बेटा व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई ए. तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. बिकॉज वाई सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? सब जगह ये यूज करेंगे. C इक्वल टू क्यू अपॉन बी. Q अपॉन V की वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने? यहाँ पे देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी. Q से Q कैंसल. C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. यस, it is when here is air or vacuum is kept inside. When any dielectric medium is kept there, then only one change you will get here. What? It is be multiplied by K. So epsilon 0 Ka by d. That is the change in a formula and nothing else. Everything remains same. If air or vacuum is there, so K is equal to 1. Otherwise the formula become epsilon naught Ka by d. Clear to everybody? Why? We can directly write here. If from here you can say E की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट. तो एवरीबडी यू कैन पुट K हियर. जो कि हम इनिशियली में ये मान लिए थे कि इसके बीच क्या है? वैक्यूम और एयर भरी है. अगर K होता तो हर जगह क्या चलाता? यहाँ भी K आता, यहाँ भी K आता, यहाँ भी K आता, यहाँ भी K आता. This place also K would have been come, then K could have been come here also. But for air and vacuum K is equal to 1. So formula is only what? C is equal to epsilon naught A by D, where K is equal to 1.
अब ये बात तो थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। अब ये बात आती है बेटा इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये बात तो हो सकती है। शुड आई रेज इट? हाउ मच एनर्जी वुड बी स्टोर्ड इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? वेरी इजी। सपोज दैट t इक्वल टू 0 अगर कोई टाइम था बिगिनिंग में, t 0 था, तो चार्जेज इसको नहीं दिए गए थे। सडनली जैसे ही हमने इसको q डैश चार्ज दे दिया सिस्टम को, तो टाइम कितना बढ़ गया, t तक पहुंच गया। ठीक है, तो स्मॉल q चार्ज देने पर, स्मॉल q की बात अभी कर रहे हैं, अगर स्मॉल q चार्ज इसको दिए हैं या स्मॉल q डैश चार्ज बीच में हमने इसको दे दिया है, स्मॉल q डैश चार्ज अभी दिया है, तो वर्क कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो स्मॉल की बात कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, q डैश इंटू डी वी डी क्यू। एग्री और नॉट एग्री? फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ। चलो आपको पहले दिखाता हूं, ऐसे और समझ में आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला v? W अपॉन क्यू। एग्री? तो W इक्वल टू क्या हुआ, v इंटू क्यू। अगर हमने dq चार्ज इसको दिया, कितना चार्ज दिया है, प्लेट से इधर इधर, इधर से इधर चार्ज जाने पे dq चार्ज हमने इस प्लेट को दे दिया। अब देखना कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वर्क भी स्मॉल होगा। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताइए मुझे, v dq। एग्री? बिकॉज कितना दिया हमने, dq चार्ज दिया है। अभी आप जानते हैं v का फॉर्मूला, v इक्वल टू क्यू बाई सी, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो क्या हम इसको ये लिखते हैं, v इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू। एग्री? अगर टोटल वर्क निकालना हो हमें w, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, dw का। और चार्ज जीरो से सपोज दैट कहां तक चला गया था, ये dq चार्ज जीरो से कहां चला गया, q तक चला गया। क्लियर? इनिशियली आपने मान लिया q डैश चार्ज उसको आपने दिया था, q डैश चार्ज दिया था, तो बीच की बात कर रहे हैं। स्मॉल dq चार्ज देने के बाद उसमें q डैश चार्ज आ गया, तो q डैश c इंटू डी क्यू, या फिर तुम्हारी इच्छा है तो q ही रहने दो, उसको समझने की बात है केवल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, 0 टू q बाई सी डी क्यू। अब मुझे बताओ q बाई सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, q डी क्यू हो जाएगा, और लिमिट 0 टू q है, ये टोटल w निकलेगा। अब जरा मुझे आप बताओ, 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है ना, 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, तो 1 बाई सी कॉन्स्टेंट रहने दो आप। अंदर क्या आएगा, क्यू डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू डी क्यू मीन्स इंटीग्रेट कर दो, क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू क्यू। फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देख लो, लिमिट रखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की। और यही वर्क डन उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या जिस फॉर्म में आप कह लो। तो हमें फार्मूला क्या बनेगा, मुझे एक फार्मूला क्या मिला बताओ भाई, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब मुझे एक बात बताइए, q इक्वल टू क्या होता है, cv। अब हम चेंज करके कई फार्मूले निकालेंगे इसके, देखिएगा। तो q की जगह cv रखिए, यहां तो क्या बनेगा, c स्क्वायर, cv रखिए, तो cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, इट मीन c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक c कैंसल, तो u इक्वल टू 1 बाई 2 cv स्क्वायर। एक फार्मूला और मिल गया, एक फार्मूला q स्क्वायर बाई 2c मिला, एक फार्मूला बना 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर मिला। अब बेटा एक बार हमने c को भी बदल के देख लेना है, c को बदल के देखेंगे तो c इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे, c इक्वल टू q बाई वी, c इक्वल टू q बाई वी। तो यहां रखिए जरा, क्या बनेगा, q अपॉन v, यहां रख दो, q अपॉन v यहां रखिए, तो क्या बनेगा 1 बाई 2 इंटू सी की जगह रख दो q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन 2 क्यू वी भी फार्मूला बन गया। 3 फार्मूले मिले, क्या क्या मिले, 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी इक्वल 1 अपॉन 2 क्यू इंटू वी। 3 फार्मूले मिले, किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पोटेंशियल एनर्जी में हम कह सकते हैं इसको। देखो जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी।
इतना समझ में आया कैपेसिटर के बारे में। भाई क्लास 10 से पढ़े आ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, चलो वो भी देख लेंगे, आज ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी तो होगा। अब सपोज दैट C1, C2, C3 इन कैपेसिटर को हमने सीरीज में ऐड कर दिया। ये प्लस क्यू होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आएगा। इस पे क्या होगा, प्लस क्यू आएगा तो माइनस क्यू आएगा। इस पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा तो माइनस क्यू होगा। बिकॉज सीरीज में जो चार्जेस जाएंगे वो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सेम चार्जेस, जो चार्ज इस पे होगा वही इस पे होगा, वही इस पे होगा। सीरीज में चार्जेस रिमेन सेम, बट या because of C1 potential would be V1, here V2, here V3। कितना आसान है देखना, मैंने बताया था बेटा, जो डिफरेंट होता है उसी की वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंट यहाँ क्या है, पोटेंशियल है, तो इस प्लेट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला जानते हैं, V C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। क्यों, चार्जेस सब पर सेम है। इस पे क्या हो जाएगा बताओ, V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q अपॉन C2 हो जाएगा। इस पे V3 की वैल्यू, यहाँ से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C3 आ जाएगी। अब टोटल पोटेंशियल अगर हम इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच निकालना है तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और भी होता तो उनको भी ऐड करते हैं, ऐड करो, सब में कॉमन Q हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो आ गया, रिजल्ट आ गया सामने। अगर इन टोटल इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और हम इसको मान लिए C, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो C है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, और हमने ये मान लिया है कि टोटल पोटेंशियल इनके बीच का V है, तो यहां से V इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, Q बाई C। देखो फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू यहां से क्या बनेगा, V इक्वल टू Q बाई C। कहां से आया, Q इक्वल टू C से फॉर्मूले से आया है। अब देखो बेटा Q कट गया, आ तो गया सीरीज के लिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्या खासियत है इसकी, कैपेसिटेंस कम होता है, 1 अपॉन में है। तो जब सीरीज में हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वुड बी लेस, चार्जेस रिमेन्स डिफरेंट। ये तो बात हो गई सीरीज की। सिमिलरली हम पैरेलल की भी बात कर लेते हैं आज। शुड आई रेज इट, यस। अब देखो कई कैपेसिटर हमने रख दिया, जैसे वहां पैरेलल की खासियत क्या होती है, ऑल फर्स्ट प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ वन पॉइंट एंड ऑल अदर प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ अदर पॉइंट। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 द कैपेसिटेंस है। ओके, अब नाउ सी, जो चार्जेस यहां से देंगे हम, Q मानो यहां से Q चार्ज दिया था, अब ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे Q2 Q3 Q2 Q1 Q2 Q3 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस Q3 माइनस Q3। इक्वल अपोजिट चार्जेस सब पे आएंगे, लेकिन यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पैरेलल में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ मुझे बताइए, लेकिन A से B के बीच पोटेंशियल क्या है, इस सब कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा, प्लेटों के बीच सेम रहेगा। सीरीज में क्या सेम था, चार्जेस सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। यहाँ चार्जेस इनडिफरेंट है और पोटेंशियल सेम है। अब नाउ सी व्हाट विल वी डू, यहाँ से बताइए क्या डिफरेंट है, Q डिफरेंट है, तो Q1 की वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू C1V। क्यों C1V, V कांस्टेंट है। यहाँ से बताइए Q2 क्या मिलेगा, C2V। यहाँ से Q3 क्या मिलेगा, C3V मिलेगा। अब हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सबको ऐड कर दो, V कॉमन होगा, अंदर क्या बनेगा, C1
प्लस C2 प्लस C3, बस आ तो गई वही बात। अगर इन पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C ले लिया, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, टोटल चार्ज कितना दिया गया था बिगनिंग में, इसको Q दिया था, बाद में ना डिवाइड हुआ, और पोटेंशियल V है, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CV, V से V कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या आया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, उल्टा है भाई। रेजिस्टेंस में सीरीज में 1/R था, यहाँ सीरीज में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है, और पैरेलल में वहाँ 1/R था, तो देखिए अभी पैरेलल में 1/C होता है, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। सो व्हाट वी गॉट इन पैरेलल, capacitance are maximum, charges are unequal and potential are same. So today we will study plenty of things. I have tried to teach you in a simple language so you can understand it well. Kindly conceptualize the entire concept in your mind and do it well. Thank you. Have a nice day. Mind your physics.